اب میں بات کرنا چاہتا ہوں محمد ابن زکریا الرازی کے بارے میں۔ 854 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، 925 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ وہ پرشین تھے، پولی میتھ تھے، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری مختلف چیزوں پہ لکھا، سوچا سمجھا۔ فزیشین بھی تھے، میڈیسن کا ان کو بہت شوق تھا، ایلکیمسٹ بھی تھے، کیمسٹ بھی تھے، اور انفیکٹ جو بغداد کے اندر جو ہسپتال تھا اس کے ایک زمانے میں چیف فزیشین بھی تھے۔ مگر فلسفے کے حوالے سے بنیادی طور پہ وہ علم الکلام کے کرٹک تھے۔ جہاں پہ علم الکلام کے کرٹک تھے وہاں پہ جو ریلیجس آرتھوڈاکسی ہے اس کے بھی کرٹک تھے، اور وہ بنیادی طور پہ جو گریک فلسفی کا اثر تھا اور جو گریک فلسفی کی سوچ تھی اس کو درست سمجھتے تھے اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ ان کا جو سب سے بڑا کرٹک تھا اس کا نام بھی الرازی تھا، اس کا نام تھا ابو حاتم الرازی، اور ابو حاتم الرازی نے جو کہ ایک اسماعیلی تھا اس کا جو نام رکھا وہ رکھا الرازی دا ہیریٹک۔ یہ نام جو ہے وہ الرازی کے ساتھ اکثر و بیشتر جو ہے وہ چپک گیا۔ اگرچہ الرازی میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے جو اسکالرز ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ لقب دینا کہ وہ ہیریٹک تھا شاید درست نہیں۔ الرازی کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے اس چیز کو جاننا کہ الرازی کے جو زیادہ تر ورکس ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچے، وہ تاریخ کے دریا کے اندر بہہ گئے اور وہ ہمیں پتہ نہیں، الرازی کو ہم پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے کہ الرازی نے کیا کہا، بلکہ الٹ یہ ہے کہ ہم الرازی کے مخالف جو لوگ لکھ رہے تھے، خاص طور پہ ابو حاتم الرازی، ان کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الرازی نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ مگر اس زمانے میں جو رائٹنگ ہوتی تھی، اور یہ صرف عربز کے لیے سچ نہیں بلکہ تقریباً تمام جو اس زمانے کی اسکالرشپ یا رائٹنگ تھی اس میں اتنی ایکوریٹ سائٹیشن یا سورسنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنے مخالف جو ان کے لکھ رہا ہوتا تھا اس کی آرگیومنٹ کو ڈسٹورٹ کر دیتے تھے، اس کی آرگیومنٹ کو غلط بیان کرتے تھے۔ لہٰذا جو ابو حاتم الرازی سے جو ہمیں الرازی کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں، ابن زکریا الرازی کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ 100% درست ہے۔ الرازی ایک ڈاکٹر تھا اور وہ انتہائی اس معاملے میں حساس شخصیت رکھتا تھا کہ جب لوگوں کے دکھ درد کو وہ دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں لوگوں کی بہتری چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ سوال کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے اور کیوں ہے یہ کہ خدا تعالیٰ جو کہ اچھائی کا نام ہے، جو کہ جسٹ ہیں، فیئر ہیں، گڈنس ہیں، انہوں نے اس دنیا کو قائم کیا، مگر اس دنیا میں اتنی ساری برائیاں کیوں، اتنے ساری ایول چیزیں کیوں، اتنی ساری بد چیزیں کیوں ہیں اس دنیا کے اندر؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ سفرنگ جو ہے، دنیا کے اندر غم جو ہے، دنیا کے اندر جو دکھ درد ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے وہ دکھ درد جو ہے وہ پیدا کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی سول، ہمارے دماغ، ہماری اپنی روح نے ایک برا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم مادی چیزوں کے ساتھ جڑ گئے، مادی چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے روح میں سمو گئی ہے، اور جو اصل روحانی چیزیں ہیں ان کو ہم بھول گئے، ان کی ہم تلاش، علم کی تلاش میں ہم نہیں نکلے ہوئے بلکہ دولت کی تلاش میں نکلے ہوئے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر اتنا سارا دکھ درد پایا جاتا ہے۔ الرازی جو ہیں وہ ایک مکمل اور کنسسٹنٹ ریشنلسٹ تھے، جس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے تھے کہ قدرت کے جو اپنے اصول و قوانین ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں لائے جا سکتے، وہ بنیادی طور پہ ٹھوس ہیں اور اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ لہٰذا وہ اس حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پیغام اپنی سچائی کی وجہ سے اس کو درست سمجھا جائے، نہ کہ جو دوسرے میریکل سائٹ کیے جاتے تھے اس کی وجہ سے ان کو درست سمجھا جائے۔ دوسرا یہ کہ متزلائٹ سوچ کی طرح وہ بھی اینتھروپومورفک کنسیپشن پہ تنقید کیا کرتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ ایک پیور اسپریچول پاور ہیں، ایک مادی قوت نہیں بلکہ اسپریچول پاور ہے۔ اور مزید یہ کہ وہ لوگ کہ جو تقلید پر یقین رکھتے تھے ان پہ بھی وہ تنقید کیا کرتے تھے، اور تقلید کی جگہ وہ عقل کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ الرازی متزلائٹس کی طرح اینتھروپومورفک کنسیپشن آف گاڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ ایک پیور اسپریچول قوت ہے، وہ کسی حوالے سے بھی جو مادی مختلف شکلوں میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا،
क्योंकि अल राज़ी एक मुकम्मल रैशनलिस्ट थे, अक्ल पर यकीन रखते थे, लिहाजा कोई भी ऐसा नुक्ता नज़र कि जो ये कहे कि कुदरत के कवानीन के अंदर तरमीम की जा सकती है, उनको तोड़ा जा सकता है, उनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसको वो हमेशा तनकीद का निशाना बनाते थे। वो ये समझते थे कि कुदरत के कवानीन तय हैं और जिस तरह से वो तय हैं, कुदरत मुकम्मल तौर पे, मादा जो है मुकम्मल तौर पे उन्हीं असूलों कवानीन पर चलता है। अल राज़ी का ये कहना था कि खुदा की सबसे बड़ी जो नेमत है इंसान के हवाले से वो है अक्ल की कुव्वत, और जो कोई भी अक्ल की कुव्वत पे सवालिया निशान उठाता है वो खुदा की सबसे बड़ी नेमत पे सवालिया निशान उठाता है। लिहाजा अल राज़ी उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्कॉलर्स को जो कि अक्ल की ताकत और कुव्वत पर लिमिटेशंस लगाते थे, कहते थे कि नहीं जी अक्ल जो है वो महदूद है, चीज़ों को अक्ल से नहीं समझा जा सकता, रीज़न से नहीं समझा जा सकता, उन पर अल राज़ी तनकीद किया करते थे। उनकी तशरीह पर, उनकी सोच पर अल राज़ी तनकीद किया करते थे। इसमें एक तरफ जहाँ पे ट्रेडिशनल इस्लामिक थियोलॉजियंस शामिल थे, जिस तरह इब्न हम्बल शामिल है, तो इसी तरह इस्माइलीज़ के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ भी अल राज़ी का बड़ी लंबी डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग चला। इस्माइलीज़ का ये नुक्ता नज़र था कि उनके जो इमाम हैं वो इनफैलिबल हैं, वो गलती कर ही नहीं सकते, लिहाजा जो उन्होंने कह दिया उसको अक्ल की बुनियाद पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर अल राज़ी इस नुक्ता नज़र को गलत समझते थे, वो इसको तकलीद कहा करते थे। हम तकलीद को आज के दौर के अंदर एक मुख्तलिफ मानों में लेते हैं, मगर उनका मतलब ये था कि कोई भी आर्ग्यूमेंट जो कि अथॉरिटी पर रिलाई करे, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी पर रिलाई करे, रीज़न पर ना बुनियाद रखे, एविडेंस पर ना बुनियाद रखे, वो बुनियादी तौर पे तकलीद है। इन्हीं तकलीद के असूलों को इस्तेमाल करते हुए वो प्लेटो और गेलन को जब पढ़ते थे तो गेलन, जिसको वो अपना उस्ताद मानते थे, उनको भी वो तनकीद का निशाना बनाते थे, क्योंकि उनका ये नुक्ता नज़र था कि हर चीज़ पे सवाल उठाना चाहिए, हर चीज़ को अक्ल के रीज़न के पैमाने पर रख के नापना, तोलना चाहिए और देखना चाहिए कि सबूत और लॉजिक जो है उस चीज़ को दुरुस्त समझता है या नहीं समझता। लिहाजा ये सिर्फ नहीं था कि वो ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कॉलर्स को चैलेंज करते थे, मगर ये भी कि वो हर चीज़ पे ही सवाल उठाते थे। एक वो जो सोक्रेटिक ट्रेडिशन है कि डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ ट्रूथ, सवाल उठाने से ही आप हकीकत और सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पे अल राज़ी का नुक्ता नज़र था। अल राज़ी ये कहते थे कि मौत जो है वो तो आनी वो तो इनेविटेबल है ना, उससे आप कोई इंसान, कोई चीज़, कोई मखलूक, कोई जिंदा चीज़ जो है बच नहीं सकती, इसलिए हमें कोई वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए मौत के बारे में सोचने के हवाले से। जब वो आएगी तो आ जाएगी। अगर हम शरिया के मुताबिक रहें, अगर हम इस्लाम के दिए हुए असूल व क़वानीन के मुताबिक रहें, अगर हम अक्ल की ताकत को इस्तेमाल करें, कॉन्टेम्पलेशन की ताकत को इस्तेमाल करें, तो फिर हमें हमेशा जो है सुख मिलेगा, हमें हमेशा ब्लिस मिलेगी, हमें अमन मिलेगा, हमें चैन मिलेगा, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये बात करना कि अक्ल की कुव्वत, रीज़न की कुव्वत जो है वो कितनी अहम है और वो कितनी बड़ी नेमत है खुदा ताला की तरफ से इंसानियत के लिए, ये कोई, मैं समझता हूँ शायद इतनी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये बात की, जो रैशनल थियोलॉजियंस थे, इल्मुल कलाम वाले लोग थे, वो भी ये बात कहते थे, जो मुतज़िलाइट्स थे वो भी ये बात कहते थे, लिहाजा ये शायद इतनी कंट्रोवर्शियल बात नहीं। जो अल राज़ी की सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी थी वो ये थी कि अल राज़ी का ये ख्याल था कि 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इटर्नल है, हमेशा से थी और हमेशा तक रहेंगी। सबसे अव्वल अल्लाह ताला खुद, जिन्होंने इस पूरी कायनात को पैदा किया, तख्लीक किया, जो कि खालिक हैं। दूसरी चीज़ मैटर। अल राज़ी का ये ख्याल था कि मैटर जो है, यानी कि मादा जो है, वो इटर्नल है, हमेशा से एग्जिस्ट करता था, हमेशा तक एग्जिस्ट करेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो जहाँ पे एक जगह एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है, मगर वो कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पे एरिस्टोटल का भी था और ग्रीक फ़िलासफ़र्स का भी था कि मादा जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। लिहाजा अल राज़ी भी
इसी नुक्ता नज़र में बिलीव करता था। अल-राज़ी का ये ख्याल था कि ये जो फॉर्मलेस मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, इसको अल्लाह ताला ने एक फॉर्म, एक शक्ल दी और जिसके नतीजे में ये तमाम कायनात बनी। और इस कायनात के अंदर जो तमाम मादी चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पे उनको खुदा ताला ने तख्लीक किया। मगर वो जो बेसिक सब्सटेंस है, वो जो जवाहिर हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो आप कह सकते हैं एटम्स हैं, वो बुनियादी तौर पे हमेशा से एग्जिस्ट करते थे और हमेशा तक एग्जिस्ट करेंगे। तीसरी चीज़ वक्त, यानी कि टाइम। टाइम के हवाले से भी अल-राज़ी का ये ख्याल था कि टाइम इन्फिनिट है, इन्फिनिटली बैकवर्ड्स है, इन्फिनिटली फॉरवर्ड्स है, हमेशा से एग्जिस्ट करता था, हमेशा तक एग्जिस्ट करेगा। और खुदा ताला ने वो इन्फिनिटली एग्जिस्टिंग टाइम को एक फॉर्म दी, एक शक्ल दी कि जिसके नतीजे में वक्त जो है वो उस शक्ल में हमारे सामने आए जिस शक्ल में वो है। और चौथी चीज़ द सोल, यानी कि रूह जो है वो बुनियादी वो चीज़ है जिसको अल-राज़ी इंटेलेक्ट कहेगा। और रूह जो है वो खुदा ताला की तरफ से हमारे अंदर शामिल होती है और रूहानी चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें अपनी इंटेलेक्ट की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगरचे सोल जो है वो इटर्नल है, मगर वो सोल, उस सोल को, उस फॉर्मलेस सोल को एक फॉर्म देना और इंसान की रूह बना देना, इंसान की इंटेलेक्ट बना देना। इंटेलेक्ट जो है, इंसान की इंटेलेक्ट जो है वो कभी भी लाफानी नहीं है, वो हमेशा फ़ानी है, वो इटर्नल नहीं है। मगर एक फॉर्मलेस किस्म की इंटेलेक्ट है, एक फॉर्मलेस किस्म की सोल है, एक फॉर्मलेस किस्म का डिवाइन माइंड है, जिसको के एमिनेट करके आप कह सकते हैं कि लोगों के कुछ हिस्से जो हैं वो अकल जो है वो इंसानों के अंदर, वो जो रूह जो है वो इंसानों के अंदर फैलती है। तो ये अमल भी खुदा ताला का है। यानी कि मकसद ये है कि रूह यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंटेलेक्ट में, फॉर्मलेस मैटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस दुनिया के मादे के अंदर, और फॉर्मलेस टाइम जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है इस दुनिया के टाइम में। और ये जो ट्रांसम्यूटेशन है, ये जो तब्दीली है, ये बुनियादी तौर पे खुदा ताला की तख्लीक है। अल-राज़ी को एल्केमी और केमिस्ट्री का भी बहुत शौक था। उसका ये ख्याल था, उसका ये तसव्वुर था कि उसने तरीका निकाल लिया कि किस तरह से मेटल्स को वो सोने के अंदर तकसीम कर सकता है, गोल्ड के अंदर तकसीम कर सकता है। मगर ज़ाहिर बात है हमें अब पता है कि ये बात दुरुस्त नहीं। एट द सेम टाइम अल-राज़ी ने अल्कोहल को की डिस्टिलेशन भी जान ली, और मज़ीद ये कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उसके हवाले से भी उसकी भी दरियाफ्त जो है अल-राज़ी ने खुद की। अल-राज़ी जो है, क्योंकि गेलन की जो मेडिकल थियरी है उसमें बड़ा पक्का उनको यकीन था और उसको समझते थे ये बड़ी दुरुस्त थियरी, उसकी पॉपुलराइजेशन, उसको आम फहम बनाने में अल-राज़ी का बड़ा ही बुनियादी किरदार था। बल्कि उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, एक मेडिकल बुक ऐसी लिखी कि जो बुनियादी तौर पर आम लोगों के लिए लिखी गई कि किस तरह से आम लोग उसको पढ़ के अपनी ज़िंदगी जो बेहतर कर सकें। तो ये शायद पहली ऐसी किताब थी जो कि मेडिकल साइंसेस को, ज़माने की मेडिकल साइंस को आम फहम करने की एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश थी, और उसका वो बड़ी कामयाब भी रही। तो अल-राज़ी ने जो जालिनूस यानी गेलन की जो थियरी है ह्यूमर्स के हवाले से, वो आम फहम की। वो थियरी ये थी कि इंसान के अंदर 4 ह्यूमर्स हैं। कौन से? ब्लड, फ्लेम, ब्लैक और येलो बाइल। और ये जब आउट ऑफ बैलेंस हो जाए एक दूसरे से तो उसके नतीजे में इंसान बीमार हो जाता है, यानी इनको इनबैलेंस करना। ये वो थियरी है जो बहुत अरसा ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि पूरी मिडीवल दुनिया के अंदर, मिडल ईस्ट वगैरह के अंदर जो है वो मकबूल रही, और आज तक हकीमों के साथ मकबूल है। अगर आप किसी हकीम के पास जाएं तो बेसिकली बुनियादी तौर पे वो गेलन की थियरी, जालिनूस की थियरी जो है उस पर यकीन रखते हैं। इसके साथ अल-राज़ी ने बच्चों के इलाज मुआलजे के हवाले से भी लिखा। उन्होंने इमराज़े चश्म के हवाले से भी लिखा कि आँखों का इलाज किस तरह किया जाए। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स के दरमियान जो फ़र्क है, पहले लोग नहीं जानते थे, वो समझते थे एक ही बीमारी है। मगर अल-राज़ी ने बड़े केयरफुली दोनों चीज़ों को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2 मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। अल-राज़ी की जो मेडिकल वर्क्स थे, ख़ास तौर पे सर्जरी के हवाले से और थेरेपी के हवाले से, इनका यूरोप की सोच पे बहुत गहरा असर हुआ। बल्कि इनको बाकायदा वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम का हिस्सा बनाया गया जो मेडिसिन की साइंसेस को पढ़ती थी। और मिडीवल पीरियड के अंदर ख़ास तौर पे जो अल-राज़ी की थियरीज़ थी जो गेलन के साथ मिलती थी, उनको बुनियादी मेडिसिन की थियरीज़ का हिस्सा समझा जाता है।